Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to HSC online class for grade 3. Students, as you know, we have done page number 10 and 11 in our previous lecture, and today we are going to learn about the use of do and does on the page number 12, and we will also learn about the use of adverb of frequency on page number 13. Look at the page number 12 and listen carefully. How do you go to school? How do they go to school? How do we go to school? Here are three words: you, they, we, pronouns. It's mean that we can use any of them with do. Look at the next example. How does he go to school? How does she go to school? Look at the next one. I, they, we go to school by bus. It's mean that we can use I, they and we with go, with to be. It's mean that we can use I, they, we with this verb go. He, she, it. We cannot use go with he, she, it. When we use subject third person singular in the beginning of sentence, we have to put es at the end of the verb. For example, go, goes. We only can use goes with he, she, it. We cannot use go with he, she, it. Go is for plural. Okay, listen the descriptions. How do they go to school? They go to school by bus. How do you go to the mall? Mom, I go to the mall by taxi. How does she go to school? She goes to school by car. Here are some examples. Ride a bike, take a bus, take a taxi, ride a scooter, take a train, take a subway. You have to make 6 sentences with the help of these phrases. Do and does. The difference between do and does is very basic. Do is a verb and does is its third person singular present. Look at the do. First of all, when the subject is represented by the pronouns I, you, we or they, we must use do. When the subject is represented by the pronouns I, you, we और they, जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो I, you या they होगा तो उस सूरत में हम do यूज़ करेंगे. ठीक है, सब्जेक्ट अगर हमारे पास I, you, वे या they होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? do यूज़ करेंगे. For example, I do not know the way. Do you have any tickets for the concert? Do you mind if I smoke? How much do you charge for a haircut? We do not have the resources to update your computer software. I do it because I like it. Here are the examples of the use of do. दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से दे देती हूँ कि जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ठीक है, तो आप डू यूज़ करेंगे. अगर आप किसी भी सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट सिंगुलर यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट यूज़ करेंगे, उस सूरत में आप डू यूज़ नहीं करेंगे. वी हैव टू यूज़ डज इंस्टेड ऑफ डू. Does. When the subject is represented by the pronouns he, she, it, we must use does. ठीक है? Look at the example. It does not look like the right way. Does your job fulfill your expectations? This store does not give credit. She always does things the hard way. What time does this train get to New York? He does not know the way. When we use do or does in the beginning of the sentence, it's mean that we are asking a question in this sentence.
जब हम किसी भी जुमले के शुरू में डू या डज पुट कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उस जुमले में सवाल पूछ रहे हैं। अब आप अपनी बुक के पेज नंबर 12 पे देखें। आपने क्या करना है, ये जो बेबो के पास एक चार्ट पकड़ा हुआ है कुछ फ्रेजेस का, आपने इनकी हेल्प से सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू राइड अ बाइक। ठीक है, अब यू है उसके साथ आपने डू पुट कर दिया है। डज शी राइड अ बाइक, इज इट क्लियर? डू दे टेक अ बस। इस तरह आपने इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चंस विद डू और डज, वी यूज़ डू और डज टू मेक ए क्वेश्चन इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप डू और डज को जब सेंटेंस की शुरू में पुट करेंगे तो वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, वो आपका एक सवालिया जुमला बन जाएगा, ऐसा जुमला बन जाएगा जिसमें आप सवाल पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं, डू यू लाइक माई लंच बॉक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपने डू और डज से सेंटेंसेस भी बनाने हैं। लुक एट द पेज नंबर 13। हियर आर द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन डू यू वॉक टू स्कूल, हाउ ऑफन डू दे वॉक टू स्कूल, हाउ ऑफन डू वी वॉक टू स्कूल। इसी तरह आपके पास एग्जाम्पल्स नीचे भी गिवन है। I always walk to school. They always walk to school. We always walk to school. She always rides a motorcycle to work. ठीक हो गया। अब नीचे ऊपर वॉक के साथ एस पुट नहीं किया गया, लेकिन नीचे राइड के साथ एस पुट किया गया है क्योंकि आपके पास ही और शी ये दो सब्जेक्ट जो हैं ये क्या हैं, सिंगुलर हैं। ठीक है। हाउ ऑफन डू दे वॉक टू स्कूल, they always walk to school, they never ride their bikes to school. अब ये often, always और never ये तीनों adverb of frequency हैं। यानी adverb of frequency उन words को कहते हैं, उन अल्फाज को कहते हैं जिन्हें पढ़कर या जिन अल्फाज की मदद से हमें ये समझ आती है कि ये काम कब हुआ था, ठीक है, कितने टाइम में हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑफन अक्सर, ऑलवेज हमेशा। अगर आप कहते हैं आई ऑलवेज डू माई वर्क इन टाइम, ठीक है, मैं हमेशा से अपना काम वक्त पे करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप हमेशा करते हैं, मीन्स 100% आप काम करते हैं। अगर आप कहते हैं आई नेवर डू माई होमवर्क, मैं कभी अपना होमवर्क नहीं करूँगा, नेवर का मतलब ये है कि कभी भी, बिल्कुल 0%। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास नीचे एग्जाम्पल्स दी गई हैं, नेवर, यूजली, रेयरली, समटाइम्स, ऑलवेज। ठीक है, तो आपके सामने एक छोटा सा ग्राफ बनाया गया है। इस ग्राफ की हेल्प से आप ये बता सकते हैं कि कौन सा काम कितना हुआ है। अब देखिए, नेवर यानी ये ब्लैंक आपका, ये इसके सामने जो बॉक्स है ये बिल्कुल ब्लैंक है। इट्स मीन दैट यहाँ नेवर मीन कभी भी नहीं, 0%। रेयरली इसका मतलब है थोड़ा सा, कुछ परसेंट काम करते हैं आप। समटाइम्स कभी कभार, बाज़ औक़ात। यूजली अक्सर, मोस्टली जिसे आप कहते हैं। ऑलवेज हमेशा आप काम करते हैं। इसी तरह ये देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक आपके पास ग्राफ है। ऑलवेज मीन आप 100% काम करते हैं। यूजली आप अक्सर औक़ात काम करते हैं। ऑफन अक्सर। समटाइम्स 30% आप काम करते हैं। नेवर मीन कभी भी आप काम नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। इसी तरह आपने इस ग्राफ की हेल्प से क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। तो हम इससे पहले, सेंटेंस बनाने से पहले इसे पढ़ लेते हैं। हाउ ऑफन डज ही राइड अ मोटरसाइकिल टू वर्क, ही यूजली राइड्स अ मोटरसाइकिल टू वर्क, ही समटाइम्स टेक्स अ टैक्सी। हाउ ऑफन डू दे take the subway to work, they always take the subway to work, they never take a bus। ठीक है, तो अब आप एग्जाम्पल्स इस टेक्स्ट से भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अब देखिए, आपके पास एक और ग्राफ है, इसमें है ऑलवेज हमेशा, यूजली अक्सर औक़ात, ज़्यादातर, ठीक है, ऑफन। ये जितने भी आपके पास वर्ड्स हैं, जो रेड कलर है इसका मतलब है ये इतना काम, इतने % काम आप कर चुके हैं, इतने % काम हुआ है। जो येलो है इसका मतलब ये है कि इतने % काम नहीं हुआ। अब लास्ट वन को आप देखें, नेवर। ये जो सारा येलो कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप काम बिल्कुल भी नहीं करते।
100%, ऑलवेज 100% आप काम करते हैं. ही इज़ ऑलवेज वेरी पंक्चुअल. आई विल सी इफ ही इज़ हेयर येट. दूसरा आपके पास यूजली. अब यूजली की एग्जाम्पल देखते हैं. 90% वी यूजली गो टू द रेस्टोरेंट ऑन संडे. ठीक है. उसके बाद है आपके पास एग्जाम्पल है ऑफन की. ऑफन मीन्स 70% काम करते हैं आप. दे ऑफन वेंट कैरोलिंग एंड क्रिसमस. ठीक है. या आप ये भी कह सकते हैं दे ऑफन विजिट द पार्क, दे ऑफन विजिट टू द म्यूजियम. ठीक है. उसके बाद है आपके पास समटाइम्स. समटाइम्स है आपके पास समटाइम्स आई जस्ट नीड समवन टू टॉक टू. बाज़ औक़ात, हर टाइम नहीं. ठीक है. हर टाइम आपका मूड नहीं होता. रेयरली, बहुत कम, कुछ परसेंट आप काम करते हैं. उस सूरत में क्या होगा? मीन्स 5% और 10%. शी इज़ ओल्ड एंड रेयरली गोज़ आउट. वो बहुत बूढ़ी और बहुत कम वो बाहर जाती हैं. उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल आपके पास नेवर. इसके कलर के अकॉर्डिंग आप मुझे बता सकते हैं और बिल्कुल ये भी आप बता सकते हैं कि 0% मीन नेवर मीन कभी भी नहीं. तो इफ़ यू डोंट एम हाई यू विल नेवर हिट हाई. ठीक है ना. तो ये थे आपके पास एग्जाम्पल्स. नाउ यू हैव टू डू सम होमवर्क विद द हेल्प ऑफ दीज गिवन वर्कशीट. ठीक है. आपने ये जो वर्कशीट्स हैं इनकी हेल्प से अपनी नोटबुक पे काम करना है. ये जितनी भी ब्लैंक्स गिवन है यहाँ पर आपने इन ब्लैंक्स को अपनी नोटबुक पे फिल करना है. ठीक है. डू और डज, यूज़ ऑफ डू और डज आप सेंटेंस की बिगनिंग में पुट करेंगे, मिड में पुट करेंगे, जहाँ भी पुट करेंगे. आपने लेक्चर को गौर से सुनने के बाद ये सारी वर्कशीट्स अपनी नोटबुक पे अटेम्प्ट करनी हैं. ठीक है. और ये जो आपके पास एक ग्राफ मैंने दिया है 6 वर्ड्स का, यू हैव टू मेक 6 sentences with the help of these given graphs. This is your homework assignment. Okay. Thank you. Allah Hafiz.